دوستو آج کے ولاگ میں آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ جہاں پر تربوز کو اگایا جاتا ہے، بالکل تازہ اور فریش تربوز یہاں پر آ کے آپ خرید سکتے ہیں، جو کہ موقع پر ہی آپ کو تازہ تربوز توڑ کر دیا جاتا ہے۔ اور دوستو آج کے ولاگ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے گرمی سے بچنے کے لیے ٹیوب ویل پارٹی پر انجوائے کیا۔ تو دوستو عید کے دوسرے دن گرمی کی بہت زیادہ شدت ہونے کی وجہ سے گھر پر ہی آپ کا بھائی ریسٹ کر رہا تھا، اور اتنے میں ابو نے بھیج دیا تھا میرے کزن طیب کو میرے گھر مجھے لینے کے لیے۔ دوستو اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم سب نے مل کر پلان کیا تھا کہ کسی ٹیوب ویل پر جا کر نہاتے ہیں اور ٹیوب ویل پارٹی پر جا کر انجوائے کرتے ہیں۔ خیر دوستو طیب کو سلام کرنے کے بعد اور نہانے کے لیے ٹراؤزر شرٹ وغیرہ اٹھانے کے بعد طیب اور میں گھر سے نکل پڑے۔ بائک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا طیب اور آپ کا بھائی بیٹھ گیا تھا طیب کے پیچھے۔ اس کے بعد ہم نے رخ کیا تھا خان چوک والی سائڈ کا، کیونکہ یہاں پر سب لوگ جمع ہو رہے تھے ٹیوب ویل پر جانے کے لیے۔ دوستو ہم یہاں پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر سب لوگ جمع ہو رہے تھے، اور اس ٹائم یہاں پر موجود تھے میرے ابو، انکل یعقوب، انکل مزمل حسن آباد والے اور انکل ایوب، اور یہ سب لوگ کھڑے ہوئے تھے رکشے کی بیک سائڈ پر۔ اس کے بعد آپ کے بھائی نے رخ کیا تھا رکشے کی فرنٹ سائڈ۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے مدثر اور مبشر بھائی حسن آباد والے، اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ، اور ساتھ ہی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ماموں آصف اور چاچو الطاف۔ اتنے میں یہاں پر ہمارے پاس پہنچ آئے تھے ثاقب بھائی، اور ساتھ ہی ان کے تھے توقیر بھائی۔ پھر آپ کے بھائی نے جا کے ان کو سلام کر لیا تھا اور اپنے ولاگ کا بھی کلپ لے لیا، اور اب اس ٹائم انتظار ہو رہا تھا آصف بھائی کا، کیونکہ باقی سب لوگ یہاں پر جمع ہو چکے تھے۔ فائنلی دوستو اتنے میں آصف بھائی بھی وہاں پر آ گئے، اور آصف بھائی کے ساتھ آیا ہوا تھا مکی، شہیر اور صفی اللہ۔ اتنے میں آصف بھائی نے بھی کیمرے کے آگے ہاتھ ہلا دیا تھا، اور پھر میں نے شہیر کو بولا تھا کہ یار ولاگ بن رہا ہے اور آپ میرے ولاگ میں پہلی بار آ رہے ہو، اور آپ بھی میرے کیمرے کے آگے ہاتھ ہلا دو۔ شہیر کا کلپ لینے کے بعد ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا ارہم، میں نے اس کا بھی کلپ لے لیا تھا، اور ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا صفی اللہ، پھر اس کی بھی ویڈیو بنا لی۔ فائنلی دوستو اب کسی کا انتظار باقی نہیں رہا تھا، سب لوگ یہاں پر جمع ہو چکے تھے، اور بس اب ٹیوب ویل پر جانے کے لیے ہم نے نکلنا تھا۔ دوستو ابو نے اسکوٹی کو ریڈی کر لیا تھا، اور آپ کے بھائی نے اپنے ولاگ کو کنٹینیو کرتے ہوئے اسکوٹی پر ابو کے ساتھ میں بیٹھ گیا، اور اسی طرح باقی سب لوگ بھی اپنی بائکس نکال رہے تھے اور وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ دوستو اتنے میں ابو اور میں وہاں سے چل پڑے تھے، اور ہم نے رخ کیا تھا سیدھا اس سائڈ کا کہ جہاں پر ہم نے جانا تھا، کہ جہاں پر ٹیوب ویل ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اور گپ شپ کرتے ہوئے ہم پہنچ گئے تھے سکندری نہر پر۔ سکندری نہر کراس کرنے کے بعد ہم نے ٹرن کر لیا تھا لیفٹ سائڈ، اور باغوں والی سائڈ سے گزرتے ہوئے ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ یہاں پر سے گزرتے ہوئے آپ کے بھائی کو راستے میں ایک ٹیوب ویل نظر آ گئی تھی، لیکن ہم نے کسی اور ٹیوب ویل پر جانا تھا۔ دوستو تھوڑا سا آگے پہنچنے کے بعد یہاں پر سب لوگ رک گئے، کیونکہ ہم میں سے ایک بندہ پیچھے رہ گیا تھا، اور وہ تھا ثاقب بھائی، اور یہاں پر سب لوگ رک کر ثاقب بھائی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو فائنلی دوستو اس ٹائم ہم سب لوگ وہاں پر پہنچ چکے تھے کہ جس ٹیوب ویل پر ہم نے جا کر نہانا تھا، اور اس وقت ہم سب لوگ اپنے کپڑے وغیرہ اور اپنے موبائل وغیرہ اسکوٹی میں رکھ رہے تھے۔ اور دوستو جیسے ہی اس ٹیوب ویل پر جا کر ہم پہنچے تھے تو ہمیں پتہ لگا تھا کہ یہاں پر میرے سارے کزن پہلے سے نہانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی پارٹی کا پروگرام کیا ہوا۔ دوستو اس ٹائم ہم سب نے اپنا سامان وغیرہ اسکوٹی کی ڈگی میں رکھ دیا تھا، اور باقی سب لوگوں نے اپنے کپڑے چینج کرنا شروع کر دیے۔ تو فائنلی دوستو اتنے میں آپ کے بھائی نے بھی یہاں پر اپنے کپڑے چینج کر لیے تھے اور اپنا ٹراؤزر شرٹ پہن لیا تھا ٹیوب ویل پر نہانے کے لیے۔ اور دوستو اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح ہم نے اپنے ٹیوب ویل پارٹی کو انجوائے کیا تھا، اور میرے کون کون سے کزن اور دوست پہلے سے یہاں پر موجود تھے، جنہوں نے خود بھی ہم سے پہلے ہی یہاں پر اپنا ٹیوب ویل پارٹی کا پروگرام ڈن کیا ہوا تھا، اور یہاں پر میرے سارے کزن اور دوست وغیرہ بھی پہلے سے یہاں پر چل کر رہے تھے۔ دوستو اس کے بعد میں نے اپنا موبائل پکڑا دیا تھا اپنے کزن ہارون کو، اور اسے بولا کہ یار اب میں جا رہا ہوں پانی میں، اور ولاگ کے کلپس تو نے لینے۔ پانی میں جاتے ہی سب سے پہلے مجھے مل گیا تھا میرا کزن عادل، اور اس کے بعد مجھے مل گیا تھا میرا دوست شازیب۔ اور اس ٹائم میں اپنے کیمرہ مین کو بول رہا تھا کہ ہر بندے کی ویڈیو اچھے سے بنانی ہے اور بہت ہی خوبصورت سے کلپ لینے ہیں۔ وہیں پر نہاتے ہوئے آپ کے بھائی کو ایک شرارت سوجی کہ شازیب کو جا کر پانی کے نیچے سے اٹھایا تھا اور ایک خوبصورت سی کلٹی دی تھی پانی میں۔ اس کے بعد وہیں پر نہاتے ہوئے موبائل پکڑ لیا تھا میں نے خود، اور پھر ایک ایک کر کے سب کی ویڈیو اچھے سے بنائی تھی اور اپنے ولاگ کے خوبصورت سے کلپس بھی لیے تھے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انکل یعقوب، احمد بھائی اور مبشر بھائی، اور ساتھ ہی بیٹھے ہوئے چل کر رہے تھے ثاقب بھائی، توقیر بھائی، طیب، مکی، اور ان کے ساتھ ایک اور بھائی بیٹھا تھا، اور ساتھ ہی ان کے صفدر بھائی بیٹھے ہوئے، اور پھر اوپر کھڑے ہوئے ماموں آصف نے بھی کیمرے کے آگے ہاتھ ہلا دیا۔ پانی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صفی اللہ ابھی تک ٹیوب ویل میں نہیں اترا تھا، اور یہیں پر ابو بھی دیوار کو پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے کیونکہ پانی بہت زیادہ تھا، اور یہیں پر کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے حسن آباد والے، وہ بھی چل کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی کیمرے کے آگے ہاتھ ہلا کر میرے ولاگ میں رونق لگا۔ اس کے بعد میں نے کیمرہ گھمایا تھا اپنے کزنوں اور دوستوں پر کہ جو ہم سے پہلے ہی اس ٹیوب ویل پر موجود تھے، اور یہاں پر بیٹھا ہوا تھا میرا کزن احمد، ہارون، شازیب، اور ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا شراز بھائی، حارث، عبداللہ، سلمان جھامبڑ، فیضان اور اویس بھائی، اور ساتھ میں ایک اور بھی بھائی بیٹھا ہوا تھا جس کا مجھے نام نہیں آتا۔ دوستو ان سب کا کلپ لینے کے بعد میں نے کیمرہ کر دیا تھا صفدر بھائی کی طرف، اور صفدر بھائی کے ساتھ ایک اور بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا۔ اس کے بعد آپ کے بھائی نے سیدھا جا کے پانی والے پائپ کے نیچے سر دیا تھا اور چل کیا، اور اس کے بعد فوراً ہی آپ کے بھائی نے ریورس گیئر لگایا تھا اور پیچھے کی جانب جانا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہارون بھی پانی میں آ گیا تھا، اور ہارون کو ایک طرف سے میں نے اٹھایا تھا اور ایک طرف سے شراز بھائی نے اٹھایا۔ اس کے بعد ایک بار پھر آپ کے بھائی کو شرارت سوجی، جس طرح پہلے شازیب کو اٹھایا تھا اسی طرح پھر دوبارہ پانی میں جا کر میں نے سلمان جھامبڑ کو اٹھا لیا، اور سلمان کو بھی ایک خوبصورت سی کلٹی
उल्टी दे दी थी पानी में। उसके बाद सलमान खड़ा हो गया था आपके भाई के कंधों पर। सलमान को कंधों पर खड़ा करने के बाद आपके भाई ने उसको ट्यूबवेल की सैर करवाई थी। दोस्तों ट्यूबवेल पर नहाते हुए और एंजॉय करते हुए मेरे पास आ गया था शहीर, और फिर आपके भाई ने शहीर को अपने कंधों पर बिठा कर एंजॉय करवाया। उसके बाद मेरी नजर पड़ी कि मेरा दोस्त अवैस भी ट्यूबवेल के एक किनारे पर खड़ा होकर नहाते हुए एंजॉय कर रहा था। कुछ देर नहाने के बाद आपका भाई चला गया था ट्यूबवेल से बाहर और अपने कजन आदिल के साथ जाकर मैं बैठ गया। उसके बाद दोबारा आपका भाई चला गया था पानी में, और दोबारा जैसे मैं पानी में गया था और अब्बू और अंकल याकूब यहाँ पर नहा रहे थे, और आपके भाई ने अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए अब्बू और अंकल याकूब की वीडियो बना ली थी और अपने व्लॉग का खूबसूरत सा क्लिप ले लिया। और साथ में यहाँ पर नहा रहा था तैयब, और आपके भाई ने एक खूबसूरत सा क्लिप उसका भी ले लिया था पानी के अंदर। माशाल्लाह दोस्तों, जैसा कि आप व्लॉग में देख रहे हैं कि इस टाइम हर बंदा चिल कर रहा था, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम हम गर्मी से भी बचे हुए थे और गर्मी से बचकर ट्यूबवेल में आए हुए थे और ट्यूबवेल पार्टी को एंजॉय। दोस्तों जैसा कि आप व्लॉग में देख रहे हैं कि यहीं पर एंजॉय करते हुए एक खूबसूरत सा क्लिप मैंने ले लिया था अपने कजन्स के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब शहीर को उठा लिया था अब्बू ने और शहीर चिल कर रहा था, और यहाँ पर हमारे साथ ही ट्यूबवेल पर नहा रहे थे फैसल भाई और उनका बेटा। दोस्तों जैसा कि आप व्लॉग में देख रहे हैं कि यहीं पर नहाते हुए तोकीर भाई ने भी एक खूबसूरत सा जंप लगा दिया था पानी से निकलने के बाद कैमरे के आगे हाथ हिला। फाइनली सब की वीडियोस बनाने के बाद कैमरे का रुख किया था आपके भाई ने अपनी तरफ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिर आपका भाई चला गया था ट्यूबवेल से बाहर, क्योंकि अब टाइम हो गया था पेट पूजा का। दोस्तों जैसे ही आपका भाई ट्यूबवेल से निकलकर रूम वाली साइड पर इंटर हुआ था तो यहाँ पर जाके मैंने देखा था कि मेरे सारे कजन और दोस्त चावलों पर धावा बोल रहे थे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि अवैस ने काली ऐनक पहनकर चावलों पर धावा बोला हुआ था और उसके साथ हेल्प करवा रहा था मेरा दोस्त शाहजेब, और इनके साथ ही बैठे हुए आदिल भी चावलों पर टूट पड़ा। खैर दोस्तों आपके भाई ने भी एक वीआईपी सी बाइट बनाई थी बिरयानी की, और अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए आपका भाई भी बिरयानी पर टूट पड़ा। खैर बिरयानी खा के जैसे ही बाहर आए थे और आकर देखा था कि किसी ने ट्यूबवेल का सुराख खोल दिया था और पानी स्पीड से बाहर आना शुरू हो गया। उसके बाद यहीं पर खड़े हुए मैंने एक क्लिप ले लिया था अपने सारे कजन्स का, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि यार हमारी एक खूबसूरत सी वीडियो बना। खैर दोस्तों इनकी वीडियो बनाने के बाद तैयब, मैं और मक्की हम तीनों निकल रहे थे तरबूज लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों हमने सोचा था कि ट्यूबवेल पर नहाते हुए अगर तरबूज खाया जाए तो ट्यूबवेल पार्टी पर 4 चांद लग जाएंगे। खैर दोस्तों तरबूज लेने के लिए हम निकल तो आए थे, लेकिन हमें कंफर्म नहीं था कि तरबूज किस जगह से मिलने। खैर दोस्तों जिस जगह पर हमें रेत नजर आती थी उसी जगह को फॉलो करते हुए हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि तरबूज हमेशा रेत वाली जगह पर उगता है। दोस्तों जैसा कि आप व्लॉग में देख रहे हैं कि इस टाइम हम तकरीबन ट्यूबवेल से 200-300 मीटर दूर चले गए थे। खैर हमने अपने सफर को कंटिन्यू किया था, क्योंकि जल्दी जल्दी तरबूज लेकर हमने वापस भी जाना था ट्यूबवेल। दोस्तों ये जो अंकल आप व्लॉग में देख रहे हैं, जिनको आपने पिछली वीडियो में भी देखा, दूर से ही मुझे ये अंकल नजर आए थे और मैंने इनको आवाज लगा दी और इन चाचा जी से पूछा था कि तरबूज कहाँ से मिलेंगे। खैर दोस्तों अंकल को इस चीज का पता था कि तरबूज कहाँ पर उगे हुए हैं। इस अंकल ने हमें उस जगह का रास्ता बता दिया था और हम तकरीबन ही उस जगह के करीब पहुंचे हुए। तो फाइनली दोस्तों इस अंकल के बताने के बाद हम उस जगह पर पहुंच चुके थे कि जहाँ पर तरबूज उगे हुए थे। तो माशाल्लाह दोस्तों जैसा कि आप व्लॉग में देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत और फ्रेश तरबूज हैं, जिनको देखने के बाद आपके दिल से एक ही आवाज आती है कि यार मजा आ गया। खैर दोस्तों तरबूज की इस फसल के पास पहुंचने के बाद हमने इस अंकल के पास जाना था और उनसे जाके इसकी कीमत पूछी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चरपाई के नीचे डोगी रास्ते में रुकावट बना हुआ था। दोस्तों बड़े ही एहतियात के साथ और बगैर शोर किए हम आगे चले गए थे ताकि डोगी उठ ना जाए। दोस्तों जैसा कि आप व्लॉग में देख रहे हैं कि हम उस जगह पर पहुंच चुके थे कि जहां से हमने जाकर तरबूज लेने थे। दोस्तों ये जगह दरिया के एक किनारे पर थी और वहां का व्यू बहुत ही जबरदस्त आ रहा था, तो इसलिए आपके भाई ने मोबाइल दे दिया था तैयब और उसे बोला था कि यार इस जगह का व्यू बहुत जबरदस्त आ रहा है और इसका एक खूबसूरत सा क्लिप ले। दोस्तों अपने व्लॉग को कंटिन्यू रखते हुए और इस खूबसूरत से व्यू का क्लिप लेने के बाद हम पहुंच गए थे उस अंकल के पास। जाने के बाद उनसे तरबूज की कीमत वगैरह पूछी थी और उनको बताया था कि हम बंदे बहुत ज्यादा हैं, ट्यूबवेल पर नहा रहे हैं और हमने 1 मन तरबूज लेने हैं। दोस्तों इन चाचा जी से हम तरबूज का रेट वगैरह डन कर ही रहे थे कि इतने में दूर से ही हमारी नजर पड़ी कि आ रहे थे जी फियाज भाई, मुबशिर भाई और मुदस्सिर भाई। ये तीनों भी हमारे पास यहाँ पर इसलिए आ रहे थे क्योंकि इन्होंने भी तरबूज लेने थे। दोस्तों जैसा कि आप व्लॉग में देख रहे हैं कि हम सब मिलकर इस चाचा के पास आकर बैठ गए थे इस छप्पर के नीचे और अब तरबूज का रेट डन कर रहे थे। फाइनली दोस्तों 1 मन तरबूज का ऑर्डर हमने दे दिया, जो कि वहीं पर ही बड़े बड़े और फ्रेश तरबूज हमारी मर्जी के ही तोड़कर हमें दिए जा रहे हैं। दोस्तों जितना वजन हमने बताया था अंदाजे के मुताबिक उन्होंने उतने तरबूज इकट्ठे करने के बाद उन तरबूजों को डाल दिया था एक थैले के अंदर। जैसा कि आप व्लॉग में देख रहे हैं कि इस अंकल ने उस वेट मशीन को भी सेट कर लिया था कि जिस पर इस तरबूज के भरे हुए थैले को रख कर इसका वेट किया जाएगा। फाइनली दोस्तों इस तरबूज से भरे हुए थैले को उठाकर इस वेट मशीन के साथ लटका दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने लेने थे 1 मन तरबूज, यानी कि 1 मन में 40 किलो तरबूज होते हैं। मैंने सोचा शायद मेरे व्यूअर्स को इस बात का इल्म ना हो, मैं बता दूं। जैसा कि अभी आपने मेरे व्लॉग में देखा है कि जिस तरबूज से भरे हुए थैले का पहले हमने वजन किया वो 28 किलो था और अब दोबारा कुछ तरबूज इस थैले में डाल दिए थे क्योंकि हमने अपना वजन पूरा करना है। दोस्तों जैसा कि आप व्लॉग में देख रहे हैं कि इस बार इन तरबूजों का वजन 20 किलो था। 28 और 20 48 किलो, यानी कि 1 मन 8 किलो तरबूज हो गए। दोस्तों यहाँ से तरबूज खरीदने के बाद एक तरबूज उठा लिया था आपके भाई ने और तरबूजों से भरे हुए इस थैले को उठा लिया था तैयब और मक्की, और एक तरबूज मुदस्सिर और मुबशिर भाई ने भी उठा लिया। और ये तरबूज उठाने के बाद हम वहाँ से रवाना हो गए थे उस साइड पर कि जहाँ पर हम ट्यूबवेल पर नहा रहे थे। दोस्तों तरबूज उठाने के बाद हम वहाँ
वहाँ से निकल पड़े थे और गप शप करते हुए वहाँ से जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से ट्यूबवेल तक का पैदल चलने का सफर 5 से 10 मिनट का था। खैर दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर आधा सफर कर लिया था और आधा सफर करने के बाद ये जो थैला मक्की और तैयब ने उठाया हुआ था और मक्की इस थैले को उठा कर थक गया। खैर दोस्तों, जो एक तरबूज उठाया हुआ था मैंने दे दिया था मक्की को और मैं तैयब के साथ मिलकर वो थैला मैंने उठवा लिया था। और उसके बाद एंड तक वो तरबूज मक्की लेकर आया था और उस थैले को तैयब और मैं उठा कर आया। खैर दोस्तों, हम तरबूज लेकर वापस वहां पर पहुंच चुके थे कि जहां पर हमने जाना था, कि जहां पर ट्यूबवेल पर पहुंचने के बाद एक एक करके हमने सारे तरबूजों को पानी में डाल दिया था ताकि तरबूज ठंडे हो जाए। खैर दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमने सारे तरबूज पानी में डाल दिए और उसके बाद आपका भाई भी आ गया था पानी में ताकि तरबूज भी ठंडे होते रहे और साथ साथ हम नहाते भी रहे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब ने अपना अपना तरबूज उठाया हुआ है और खुद भी नहा रहे हैं और तरबूज को भी ठंडा कर रहे हैं। और यहीं पर नहाते हुए मेरे पास आ गया था हारून, फिर आपके भाई ने उसको भी उठा लिया था और हारून ने कैमरे को देख के भी ओके कर दिया। उसके बाद हारून और मैंने एक डुबकी लगाई थी खूबसूरत सी पानी के अंदर और साथ ही खड़े हुए सफीउल्लाह ने भी एक खूबसूरत सी डुबकी लगा दी थी पानी। सफीउल्लाह की वीडियो बनाने के बाद साथ ही मक्की खड़ा हुआ था, फिर उसकी भी वीडियो बना ली थी पानी में डुबकी लगाते हुए। खैर दोस्तों, इस दौरान नहाते हुए यहीं पर आपके भाई के हाथ लग गया था एक तरबूज और आपके भाई ने तरबूज समेत पानी में एक डुबकी लगा ली। खैर दोस्तों, इस वक्त तरबूजों को पानी में छोड़े हुए आधा घंटा गुजर चुका था और इस दौरान हम सब दोस्त मिलकर और सब कजन मिलकर फुल इंजॉय कर रहे थे और चिल कर रहे थे। और अब नहाते हुए इंतजार ये हो रहा था कि किस टाइम मुकम्मल तौर पर तरबूज ठंडे होंगे और हम उन पर टूट पड़े। और यहीं पर नहाते हुए और इंजॉय करते हुए मुदस्सिर भाई के बेटे ने भी कैमरे के आगे हाथ हिला दिया और साथ में ही खड़े हुए हारून ने भी पानी में डुबकी लगा दी। और इस टाइम हम सब कजन मिलकर नहा भी रहे थे और इंजॉय भी कर रहे थे। यहीं पर ही चिल करते हुए हमारे पास आ गया था आदिल, जिसने आते ही अहमद से पंगे लेने शुरू कर दिए। खैर दोस्तों, इतने में आपके भाई की नजर पड़ी कि तैयब ने मक्की को अपने कंधों पर उठाया हुआ। तैयब ने भी एक खूबसूरत सी कल्टी दे दी थी मक्की को। दोस्तों, अपने सब कजन्स के क्लिप्स वगैरह लेने के बाद आपके भाई ने कैमरा घुमा दिया था अपनी तरफ। आपके भाई ने भी पानी के अंदर जाके अपना खूबसूरत सा एक क्लिप ले लिया। उसके बाद आपके भाई ने हारून से एक ऐनक छीन ली थी और काली ऐनक पहनने के बाद आपका भाई चौड़ा हो गया। फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप व्लॉग में देख रहे हैं कि अब टाइम आ गया था तरबूज पर धावा बोलने का और आपके भाई ने एक खूबसूरत सी बाइट ले ली थी तरबूज और साथ में ही फैजान खड़ा हुआ था तो उसने भी कैमरे को देख के हाथ हिला दिया था। दोस्तों, जैसा कि आप व्लॉग में देख रहे हैं कि इस वक्त बड़ों से लेकर छोटों तक हर बंदे के हाथ में तरबूज था और इस दौरान हम सब मिलकर नहा भी रहे थे और साथ में तरबूज भी खा रहे थे। जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी आज की इस ट्यूबवेल पार्टी में तरबूज ने तो 4 चांद लगा दिए। खैर दोस्तों, यहीं पर मैं अपने व्लॉग के क्लिप्स ही ले रहा था, इतने में मेरी नजर पड़ी कि हारिस को सब ने मिलकर तंग किया हुआ था। अब्दुल्ला ने हारिस से शर्त लगाई हुई थी कि अगर हारिस ट्यूबवेल से बाहर निकल गया तो अब्दुल्ला बोतल पिलाएगा और अगर बाहर ना निकल सका तो हारिस इन सबको बोतल पिलाएगा। दोस्तों, शर्त ये थी कि ये जो दीवार आप व्लॉग में देख रहे हैं, इसी दीवार पर अपने हाथों की मदद से हारिस ने ऊपर चढ़ना। हारिस पहले 2-3 बार ट्राई कर चुका था लेकिन ऊपर नहीं चढ़ सका और अब इस टाइम हारिस को लास्ट 3 चांसेस दिए गए थे कि अगर इन 3 चांसेस के दौरान हारिस ऊपर चढ़ गया तो जीत जाएगा वरना हार जाएगा। दोस्तों, पहले तो मैं भी यही समझ रहा था कि हारिस ऊपर नहीं चढ़ सकता, लेकिन जैसा कि आप व्लॉग में देख रहे हैं कि हारिस ऊपर चढ़ने लगता है और ये सब मिलकर उसे तंग करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप व्लॉग में देख रहे हैं कि इस बार हारिस तकरीबन ऊपर चढ़ ही गया था लेकिन अब्दुल्ला की चीटिंग की वजह से वो दोबारा नीचे आ गया। दोस्तों, इस ट्यूबवेल पार्टी को एंजॉय करने के बाद मेरे सारे कजन और दोस्त यहाँ से रवाना होने लगे। उसके बाद आपका भाई चला गया था इन सब को अल्लाह हाफिज करने के लिए। सलमान झांबड़ और फैजान को अल्लाह हाफिज करने के बाद मैं चला गया था अपने दोस्त शाहजेब के पास। शाहजेब और अवैस को अल्लाह हाफिज करने के बाद आदिल को भी अल्लाह हाफिज कर दिया। इनके साथ ही अब्दुल्ला खड़ा हुआ था, फिर आपके भाई ने अब्दुल्ला को भी अल्लाह हाफिज कर दिया था और यहाँ पर अब्दुल्ला के साथ खड़ा हुआ था हारिस, फिर आपके भाई ने हारिस को भी अल्लाह हाफिज कर दिया। थोड़ा सा आगे साथ में एक छोटू भाई खड़ा हुआ था, फिर उसको भी आपके भाई ने अल्लाह हाफिज कर दिया। उसके बाद आपका भाई चला गया था थोड़ा सा आगे अपने कजन अहमद के पास और यहाँ पर अहमद के साथ बैठे हुए थे शराज भाई और साथ में हारून भी यहाँ पर बैठा हुआ था। फिर आपके भाई ने शराज भाई, हारून और अहमद को भी अल्लाह हाफिज कर दिया। उसके बाद ये सब दोस्त मुझे अल्लाह हाफिज करने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे थे। तो खैर दोस्तों, इतने में एक और पार्टी आ गई थी ट्यूबवेल पर नहाने के लिए और ये सब भाई लोग तो अपने इलाका कासिम बेला के थे और यहाँ पर हमारे साथ थे नुमान भाई और सलमान भाई आटा चक्की वाले। दोस्तों, अगर आप में से भी कोई मेरे इलाके के इन भाइयों को जानता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फाइनली दोस्तों, ट्यूबवेल पार्टी एंजॉय करने के बाद अबू और मैं भी वहाँ से रवाना हो चुके थे और अगर आपको अपने भाई का व्लॉग अच्छा लगा तो अपने भाई को अप्रिशिएट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और फुल व्लॉग देखने के लिए अपने भाई का यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट कीजिएगा। यूट्यूब चैनल का लिंक भी अकाउंट की बायो में लगा हुआ है और उस चैनल का नाम भी यही है, कासिम बेला व्लॉग। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करता हूँ एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।